Hello everyone and welcome to Voices of Experience. Today we have with us CA Shivam Palan, a founder and CEO of CA Monk, a mentor who has guided thousands of students and professionals to crack the interviews and placements. So starting with, you became a CA at 21, but is it right? Is it true you became a CA at 21? So but when did you realize that only technical knowledge is not sufficient and you need to step out of that just technical portion as well? So, देखो ये journey is all about the experiences which is there. So when you're going to be working in some corporates or when you're going to be working in some industries, you get to know technical will help you up to some extent. But of course, उसके साथ साथ you need an edge of soft skilling, you need an edge of other tools which are going in the market. सामने वाला ये देखता है कि इसके पास वो स्किल है जो मुझे चाहिए है, वो ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास क्या है, right? So you're hiring based on that which is going to be happening. So over a period of time, when I was also working with Big Four and also I worked with Udan is a unicorn startup, which was a unicorn startup. So I get to know that this is what the industry demands. And the rule of a game is if you have to survive, you have to get what other people want. It does not matter you like or not. From there, I get to know the importance of this, and I started also upskilling myself and started building the same thing on that. Got it, sir. So so most students they know accounting. So the CAs are known for accounting, but very few know about the career strategy. CA करके तो हम लोग accounting तो सीख जाते हैं, but everyone cannot make themselves in the top positions. चाहे वो it's a traditional one या corporate sector में जाके हो. So how do you think that they should develop about the and what is the thing that they're missing? देखो, एक 10 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप कभी सर्च करते हो, और मैं काफी बार इन नौकरी बुकों पे देखता हूँ, तो एक 10 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको 50 लाख कमाते हुए भी दिखेगा और एक 10 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको 20 लाख कमाते हुए भी दिखेगा। एक 10 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको 2 करोड़ भी कमाते हुए दिखेगा। डिफरेंस क्या है इन सब में? सबसे पहला डिफरेंस है इज ऑफ एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड कैसा है, कि आप कैसे चीजों को लेते हो, कैसे चीजों को सोचते हो। एंड इट बॉइल्स डाउन टू वन इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम वेरी योर स्टार्टिंग। जैसे कि काफी बार बच्चे लोग सोचते हैं कि यार जहाँ आर्टिकलशिप मिल रही है ले लो, राइट, पापा ने रेफर कर दिया तो चले जाते हैं। ये नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आपको एक्सपोजर क्या मिला है, लर्निंग क्या मिला है, क्योंकि वो ही आपका सेलिंग पॉइंट बनता है आगे का। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड, इसमें डिफरेंस क्या है कि भैया मैं 10 कमा रहा हूँ या 20 कमा रहा हूँ, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट यू लाइक एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाट यू ग्रो। जैसे कि अगेन वो 3 इडियट्स में कहते हैं ना कि अगर सचिन तेंदुलकर सिंगर बन जाता तो पैसे नहीं कमाता कभी। उसी प्रकार से यू हैव टू फाइंड आउट योर पैशन। जैसे मेरा पैशन क्या है, मुझे पढ़ाने में मजा आता है, मुझे इंटरव्यू ट्रेनिंग्स में मजा आता है। तो अगर बच्चा वो पैशन ढूंढ ले, अब वो ढूंढने कैसे? मान लो 4 लोग से बात कर रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया या आपने कहीं पे किसी भी मेंटर को मिले। द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज एंड द ब्यूटी ऑफ सीए स्टूडेंट इज एंड आल्सो फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोई आपको कभी मना नहीं करेगा। दिक्कत ये है कि हम जाते नहीं है पूछने के लिए। So the day people start approaching them, your life will become easy. People will start telling you, get a clarity on domains, which is then once you get it out, you will be able to pivot your journey. So that is a difference which is there. Also, sir, we have seen many times that now CA students are sometimes compared with CA degrees is compared with MBAs most of the time, and people there is a mindset that we lag in that public speaking maybe, or that we are more into technicals and they are more into maybe management and sector. So, but do you think that this gap between the CAs and MBAs is now narrowing and CAs are also going towards management and higher position? What is the reason you think now? देखो, इसका रीजन ये है कि एक सबसे पहला क्या होता है कि आज की तारीख में इंडस्ट्री को है ना एक ओवरऑल पर्सनालिटी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि सर मुझे काम करके आता है, बोलेगा कि भाई काम तो कोई भी कर लेगा। I have to spend your 12 hours with you in the office, but do you have that level of exposure in terms of dealing with the client, in terms of bringing your business, in terms of training your clients and the peer group? तो वो स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा। नंबर टू, अगेन इट्स अ मिक्स्ड ओपिनियन। मैं 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में इसको डिवाइड करता हूँ। एक जिनके पास अच्छा नॉलेज है, जो कॉन्फ्रेंसेज में पार्ट करते हैं, जो कोई इवेंट होता है उसमें दे पार्टिसिपेट, दे वांट टू होस्ट द इवेंट, दे वांट टू बिकम एमओसीज एंड ऑल दो स्टफ। कैटेगरी नंबर 1, दे आर रेडी टू वर्क। कैटेगरी नंबर 2 वो बोलती है भाई मुझे पता है कि आप एक स्टूडेंट कैसे सोचता है। ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं, देखो यार हमारा गोल है कि हमें 5 साल में सीए बनना है। बच्चे का गोल कैसा है, वो सोचता कैसे 5 साल में सीए बनना है, डिवाइड करता है। आर्टिकलशिप 2-2.5 साल की है, ठीक है भाई, 2-2.5 साल में कंप्लीट करना है। उस दौरान मुझे सीए फाइनल की पढ़ाई करनी है, 6-7 जितने भी सब्जेक्ट है उससे खत्म करना है।
फिर वो बोलता है कि इंटर मुझे इतने टाइम में खत्म करना है क्योंकि 9 महीने में या 12 महीने में आपको कंप्लीटेड आउट और फाउंडेशन उसकी जर्नी में कंप्लीट करना है। तो इस जर्नी में बच्चा क्या बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस सिर्फ करना है पढ़ाई पे, बाकी चीजें मैं बाद में कर लूंगा। But when it comes to an MBA, guys, right? I being a part of a B school, I am Indore. I'm alumni there. I did a FDP from there. तो जब मैं वहां पे था तो मैंने एक चीज नोटिस की, जिस दिन बच्चा कैंपस में पैर रखता है, पहला दिन जब वो बच्चा कैंपस में पैर रखता है, यू नो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दे डू व्हेन दे गो टू कैंपस इज दे प्रिपेयर देयर सीवी। वो अपना रिज्यूम बनाता है जिस दिन पहले दिन कैंपस में जाता है। एक सीए स्टूडेंट अपना सीवी पर बनाता है जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, और जब वो बनाता है तब बोलता है कि सर एक्स्ट्रा करिकुलर में तो कुछ है ही नहीं डालने को। अरे भाई ये तो पहले रियलाइज करना था ना जब एंटर कर रहे थे, बिकॉज आज की तारीख में लोग किसको देख रहे हैं, पीपल वांट दोस टाइप ऑफ पीपल हु नोज द थिंग्स वेल प्लस हु कैन आल्सो डील इन योर लीडरशिप रोल। तो जो कर पा रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जो नहीं कर पा रहा है वो सीख रहा है, और जब तक सीख रहा है तब तक अपॉर्चुनिटी चली रहा है। तो करना तो आप ही को पड़ेगा। आप ये नहीं रोक सकते कि भाई करिकुलम ज्यादा है, ये ज्यादा है। भाई आप देखो कुछ ऐसे बच्चे जो कॉन्फ्रेंसेस में भी पार्ट ले रहे हैं, पेपर प्रेजेंट भी कर रहे हैं, राइट, कहीं पे कमिटीज में पार्ट है, वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो पीछे है, राइट, तो वो भी कर रहे हैं, वो भी अच्छी जगह जा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी हेल्पिंग देम। तो ये जो चीज है ना कि दो बकेट्स, जो एक सेकंड कैटेगरी वाले बकेट है, जो स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई सिर्फ पढ़ाई करना है और निकलना है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पिंग इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हेल्प करेगा आपको, लोग बोलेंगे भैया ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, एक बार के लिए बोल देंगे भैया तुम्हारा रैंक आ गया तो तुम रैंक करो। बट जब इंडस्ट्री में जाओगे ना तो बोलेंगे यार ये तो सिर्फ किताबी ज्ञान है इसके पास, ये बोल नहीं पा रहे हैं तो बेच नहीं पा रहे हैं। तो दैट इज वेयर द पीपल फेल डाउन। So like even being part of ICASA, we have felt this कि कोई भी इवेंट हम लोग करवाते हैं, कुछ भी करते हैं, so what mindset students have is कि ये क्या काम आएगा मेरे, मैं इससे अच्छा अपना मैं आर्टिकलशिप करूँ वो काम आ जाएगा, या पढ़ाई करूंगा मैं वो काम आ जाएगा। बट वो मतलब वो माइंडसेट का कैसे, मतलब हाउ टू लाइक वी आर नॉट एबल टू क्रैक दैट कि हाउ टू क्रैक दैट कि उन्हें समझाया जाए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोटिव्स ऑफ आवर पॉडकास्ट चैनल, बिकॉज वी are actually bringing such people, such CAs who are not only following the traditional path. We had someone who is in the reality sector, real estate sector, some like you are a teacher, a mentor. So this is our key. It's not the time कि सिर्फ traditional path में रहकर हो सकता है. There is so much opportunities. I think CA लोग सोचते हैं CA is the end process, but I think CA is the starting point एक बार डिग्री बन जाने का, because there are I think now मतलब बहुत scopes हो गए CA के, right? So मतलब so what do you think, like moving on to next question of course, so a guy who will crack CA crack करने के बाद there is a guy who will crack a 6 to 8 lakh package, and there is a guy who can crack 30 lakh package also. So what do you think, what is the difference that sets them apart? राइट, तो देखो सिंपल डिफरेंस है, राइट, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहला जो 30 लाख वाला कमा रहा है और जो 8 लाख वाला जो कमा रहा है, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि भैया 30 लाख वाले को पता है कि उसको क्या चाहिए, राइट, उसका डोमेन क्लैरिटी कि भैया मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, मुझे एफपीए चाहिए, मुझे एफडीटी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उसको डोमेन क्लैरिटी। जो बंदा 7-8 लाख से चालू कर रहा है उसके पीछे रीजन हो सकता है व्हाई दे आर स्टार्टिंग विद दैट पैकेज, कैन बी एनी रीजन, राइट। हो सकता है कि भैया मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरे को जॉब लेना इंपॉर्टेंट है, या मेरे पास सीवी में एक्सपोजर नहीं था तो मैं एक्सपोजर ले लेता हूँ। बट डिफरेंस कहाँ पे आया? डिफरेंस सबसे पहला आता है आपका आर्टिकलशिप। आई बी वेरी ऑनेस्ट, इंटरव्यूअर ये नहीं देखता है कि आपने जो चीजें की है, जब मतलब आपने जो भी काम किया है वो तो देखेगा ही, बट इसके साथ साथ वो ब्रांड भी देखेगा। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि आप कभी मम्मी के पास गए घर पे और मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा डिटर्जेंट पाउडर लेके आओ, आप कौन सी कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर लाओगे? आप या तो सर्फ एक्सेल लाओगे या कुछ ऐसे पाउडर लाओगे जो आपको पता है। कोई ऐसा भलता प्रोडक्ट नहीं लेके जाओगे जो आपने कभी सुना नहीं है। तो मैं कहता हूँ एक बड़ा सा ब्रांड भी आप, और डिटर्जेंट पाउडर भी खरीदना, उसमें आप बोलते हो ब्रांड चाहिए, करेक्ट। तो भैया जब इंटरव्यूअर आपको हायर कर रहा है तो वो भी तो देखेगा ना कि इसमें स्किल है क्या, नॉलेज है क्या, ब्रांड है क्या, राइट, इसको चीजें आती है क्या, तो वो चीज सबसे पहले देखेगा, विच इज अ मेजर लैग बिटवीन द टू पीपल आउट। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरी आर्टिकलशिप छोटी फर्म से हुई है, मैंने वो चीजें नहीं कर पाया, विच इज दैट। रूल ऑफ अ गेम क्या है? थिंग्स कैन बी लर्न, रोने का नहीं। वहां नहीं सीखे तो कहीं और जाके सीखो, कहीं और नहीं जा सकते तो दोस्त के पास जाओ जो काम कर रहा है उसके पास जाके समझो कि भैया ऐसे होता है। दैट इज वन। नंबर 2 रूल है कि भैया अगर तुम नहीं कर रहे हो तो कोई और कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आईटीसी में वैकेंसी आती है, आईटीसी इज अ कंपनी व्हिच पेज अ पैकेज ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 24 लाख। अगर एक वैकेंसी आएगी तो उस अटेम्प्ट में जितने बच्चे वो भी अप्लाई करेंगे और जो पिछले अटेम्प्ट वाले वो भी अप्लाई करेंगे। कंपटीशन कितना है? सिलेक्ट किसको करेगा? जिसके पास एक ब्रांड है,
जिसके पास एक एक्सपोजर अच्छा है, जिसको चीजें आती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेट कर पा रहा है. Journey of interview is of 30 minutes, but this 30 minutes is very important, and this 30 minutes you have to sell what you've done in the last 5 years. पिछले 5 साल में आपने क्या किया, वो इस 30 मिनट में आपको बेचना है. और वो कैसे बेच पाओगे, जब आपको जर्नी में पता रहेगा कि मेरी अच्छी चीजें क्या है, आपको पता रहेगा कि सामने वाले को क्या चाहिए, राइट. वो एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर लेता है. और सबसे बड़ी चीज, काफी सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं, और जो देख रहे हैं, अगर आप ये करने वाले हो तो प्लीज रुक जाओ. और वो ये है कि भैया, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके बाद अपना एक छोटा सा सीवी बनाओ और अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये मेरा सीवी बाकियों के रेज्यूमे से अलग है? अगर जवाब आता है हाँ, तो आप सही जा रहे हो. अगर जवाब आता है ना, तो आपको कुछ चेंज करने का तुरंत जरूरत है. फिर आप सवाल करोगे ना कि मुझे चेंज करने की जरूरत है, तो सवाल करिए कि क्या चेंज कर सकता हूँ. क्या मेरी फर्म में अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल रहा, तो फर्म बदलूं. क्या मेरे पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेने का अपॉर्चुनिटी है, तो वो लूं. क्या मैं कोई सर्टिफिकेशन या कोई अच्छे कोर्सेज सीख सकता हूँ, तो वो करूँ. सवाल पूछने पड़ेंगे. दिक्कत क्या है, बच्चा सवाल का पूछता है जब सीए बन जाता है, बट उसके बाद फिर टाइम नहीं रहता, और एक बार सीए बन गया तो परसेप्शन में पैसा कमा जाता. तो यहाँ पे इज अ विशियस सर्कल वेयर पीपल गेट. So like people also want to, जैसे we already talked about MBA, so CA plus MBA मतलब करना चाहते हैं, तो do you think वो MBA के लिए वो लीव मतलब लेना, अगर जॉब कर रहे हैं तो taking that leap year is good, या फिर you know वो मतलब साथ में साइड बाय साइड कुछ वैसे करना चाहिए, मतलब प्रॉपर लीप ईयर लेके. up to you what is your goal at the end of the day. जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट था, राइट. शी वाज वर्किंग विद अ डेल कंपनी. शी वर्कड देयर फॉर 3 years. आफ्टर दैट रिजल्ट शी पिवटेड टू गूगल, राइट. हर प्लान वाज टू डू एन एमबीए, बट शी वाज स्मार्ट इनफ टू पिवट हरसेल्फ टू गूगल. तो जितना एमबीए से मिलता, शी वाज एबल टू गेट इट अप. व्हाई डू पीपल डू एन एमबीए, व्हाई डू पीपल गो फॉर अदर कोर्सेस? Because they want to push up their CV, or they want to pivot to a different domain. If you get into the different domain without doing that, that's bang on. If not, then you can think of the same. देखो, अगर आप देखेंगे कि let's pick out any of the role, let's say investment banking or management consulting. आपको क्या करना है, लिंक्डइन पे जाओ, सिंपल काम करो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. फिल्टर पे करना पीपल पे क्लिक, आपको लिस्ट ऑफ पीपल मिल जाएंगे जो आईबी में काम करते हैं. उसके बाद फिल्टर करना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में. इसमें आएगा स्कूल का ऑप्शन, स्कूल में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को फिल्टर करना. पूरे लिस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिल जाएंगे जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करते हैं. यू विल बी एबल टू सी, उसमें कुछ प्रकार के लोग रहेंगे जिन्होंने सीएफए किया है, जिन्होंने एसीसीए किया है, जिन्होंने एमबीए किया है, जिन्होंने सीए किया है. यू फिगर द प्रोफाइल आउट, एंड देन यू सी कि कौन से कैटेगरी वाले लोग ज्यादा है और लोग क्या कर रहे हैं उधर जाने के लिए. इट्स नॉट अ हर्ड मेंटालिटी कि उसने किया तो मुझे भी करना है. ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं विदाउट एनी डिग्री. वैसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो कुछ नहीं कमा पा रहे इवन आफ्टर हैविंग डिग्री. विल हेल्प यू टू पुश. एक स्टार्टिंग देगा, उसके बाद ग्रोथ आपको करना है. So also when we talked about different finance roles, so what do you think कि अभी next 5 years में any such finance roles where you think CA will be able to take up, like maybe dominate those sectors in finance? हाँ, तो अभी जैसे फिनटेक बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है विच है ना. तो दिक्कत क्या है कि फाइनेंस इज वन ऑफ द फंक्शन व्हिच इज गोना बी बूमिंग वेरी फास्ट. अब ऑटोमेशन की दुनिया में अगर मैं बात करूं, तो फाइनेंस कम्स एट द लास्ट स्टेज ऑफ ऑटोमेशन. उसका रीजन है, मान लो कुछ मैंने ऑटोमेट किया, एक जीरो इधर को उधर हो गया, पूरा चेंजेस गड़बड़ हो जाएगा. अब क्या हो रहा है, कंपनीज हैव रियलाइज्ड कि वी हैव टू ऑटोमेट ऑल द प्रोसेसेस व्हिच इज देयर. The CAs, those who are moving to a data analytics role, the CAs, those who are automating AI for finance and doing the stuff, they're able to pivot their careers. छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. पहले के जमाने में हम लोग 20-20, 25-25 घंटे VBA कोडिंग सीखते थे एक्सेल में. आज के जमाने में यही VBA कोडिंग आप 20 मिनट में सीख सकते हो, which has taken 30 hours of the same. दिक्कत ये है, जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो कोई बात नहीं, वो सीखेगा और फिर आगे बढ़ेगा. So what I'm trying to say is area में what is going to be growing. Number one, the fintech space is growing up very large. Number two, if you can help in terms of bringing a clients or a business, or if you have a very good network, you will be able to pivot in your career very fast. मान लो मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, I have a very good connects in US, Canada, Philippines, Malaysia, or different countries. If I can help someone to bring a business to India, you'll be shocked to see this. भैया वो बंदा बोलेगा तू मेरे साथ आ जा. एक और बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ. अगर आप लिंक्डइन पे सर्च करते हो कभी कि हाउ मेनी पीपल आर लुकिंग टू हायर अकाउंटेंट्स, या अकाउंटेंट्स की कितनी वैकेंसी है फॉर इंडिया वर्सेस हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर इन यूएस, यू विल बी शॉक्ड टू सी दिस.
यूएस में द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 10x एज कंपेयर्ड टू इंडिया. रीजन देयर इज अ शॉर्टेजेस ऑफ डॉक्टर्स. वो पूरा काम इधर आउटसोर्स होगा. तो अगर वो बंदा अगर कोई आउटसोर्सिंग प्रैक्टिस ग्रो कर रहा है, दे कैन मेक अ मनी. Those are developing a tech and can automate the process, they can make a money. ये दो सेक्टर बहुत ज्यादा बूमिंग हो गए. ठीक है, तो that is what I think people should consider. Okay. So, do you think the work from home concept is actually good for like finance till your office? This is a generic one. So, what's your take on work from home? मतलब देखो, इसका कोई सही और गलत आंसर नहीं है. आई बिलीव इन कि काम हो रहा है तब तक सही है, नहीं हो रहा है तो गलत है. दैट इज व्हाट इट इज. हमारी टीम तो पूरी वर्क फ्रॉम होम है इन आवर ऑफिस. तो हमारा प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, काम हो रहा है वर्क फ्रॉम बढ़िया है, नहीं हो रहा है तो फिर गलत है. तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट व्हाट यू बिल्ड फॉर योर टीम इन ऑफिस. राइट, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम कब कर रहे हो, रात को 2 बजे करके बीच काम चाहिए आज तक चाहिए. तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डेवलप इट आउट एज अ लीडरशिप लेवल. लीडरशिप लेवल का थॉट प्रोसेस अगर वो रहेगा ना तो कल्चर अपने आप ऐसे ग्रो होगा. Okay. So, do you believe there is a difference in the mindset in working in a startup and a corporate? And हाँ, there's is a an huge edge? huge difference in our mindset. Startup क्या होता है? Startup is an organization which is built to grow fast. Right? Corporate क्या है? Corporate are organizations which are already built. What do you have to do? You have to sustain and survive. तो startup में ग्राफ ऐसा जा रहा है, corporate ऐसा है. तो क्या होता है? startup पे तो हायरिंग भी होता है ना, उसमें आप देखते हो कि वहाँ पे आप बहुत स्मार्ट लोगों के साथ डील करते हो, कि वहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, टारगेट्स ज्यादा रहेंगे, गोल्स बड़े रहेंगे. कॉर्पोरेट्स में क्या है? प्रोसेसेस डिफाइंड है, ये चीज ऐसे ही होगी तो होगी. आई वर्कड इनटू स्टार्टअप, आई हैव सीन द कॉर्पोरेट रोल. तो स्टार्टअप में हम जब उड़ान में भी काम करते थे, हम लोग पहले ये नहीं देखते थे कि इसका कंप्लायंस में क्या इफेक्ट है, इसका क्या इफेक्ट है. पहले देखते धंधा बन रहा है कि नहीं, अब कैसे इसको फटाफट बना. थॉट प्रोसेस. कॉर्पोरेट वाला बोलेगा भैया ये प्रोसेस है, वेंडर ऑनबोर्डिंग ऐसे ही होगी तो ऐसे ही होगी, 3 पार्टी कोड लगेंगे तो 3 पार्टी कोड लगेंगे. स्टार्टअप वाला क्या बोलता है? भैया धंधा आ रहा है ना, पहले स्केल अप करो, मार्केट कैप्चर करो, बाद में इसको थोड़ा सेटअप कर लेंगे. तो ये थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है. प्रेशर ऑफ कोर्स ज्यादा रहता है स्टार्टअप में, बिकॉज कोई भी चाहेगा कि करोड़ों रुपए जब लगा रहे हैं तो ग्रो करे, फास्ट मार्केट कैप्चर करे. तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन. And the risk factor भी people usually say कि कोई गारंटी नहीं होती जॉब की. तो इज इट ट्रू? स्टार्टअप्स में बोलते हैं कि दे कैन फायर यू एनी टाइम, अगर चला तो रहेगा, नहीं चला तो दे कैन फायर यू. तो गारंटी तो लाइफ में भी नहीं है ना, वो तो कल रहे ना रहे किसको पता. तो अगेन देखो, आपका नॉलेज है, स्किल है, कोई भी उठा लेगा. एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड करता है तुम्हारे पास कितना नॉलेज है, कितना स्किल है, तुम बेच पाते हो कि नहीं, सीवी कितना स्ट्रांग है, और लास्ट थिंग सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा नेटवर्क कितना स्ट्रांग है. so one will ask about this. People talk about courses like छोटे-मोटे courses, certificate courses, but at the same time we have also seen that there's so much of knowledge sessions available in YouTube which are for free. So what do you think? And if a person really does a good research, they can see that they can develop a lot of skill only through YouTube. So what do you think that we should go towards? पहले certificate ले लेते हैं, ये वो कर लेते हैं, because most of the certificates में they just give you a book, a PDF, read करना है, बैठना, exam करना है, that's it. So what do you think? वो certificate लेकर फायदा है या YouTube में जितना ज्यादा सर्व करके उसको तुम मतलब अपना स्किल डेवलप करो वो ज्यादा, मतलब what do you think is बड़ा ही more सिंपल है. important? बच्चा कहता है कि सर सीवी में पॉइंट डालना है, बट सर्टिफिकेट नहीं है तो डालना, डालो. The recipe is all about what you know. People don't ask for a certification. तुमने लिखा कि भैया मुझे AI का फाइनेंस आता है, मैं पूछता हूँ कि बताओ भाई VBA कोडिंग कैसे करता है, बोले सर ये नहीं आता, तो फिर क्या सीख. मैं पूछता हूँ बताओ चैट जीपीटी में आप ये 10 चीजें कैसे कर सकते हो, बोलते सर ये तो नहीं आता. तो आपने सीखा नहीं, आपने सिर्फ सर्टिफिकेट लिया. सर्टिफिकेट डज नॉट हैव अ वैल्यू टिल यू लर्न द थिंग्स. चीजें सीखनी पड़ेगी. सर्टिफिकेशन तो क्या है, पैसा दो सर्टिफिकेट मिलता है. सर्टिफिकेट का दिक्कत नहीं है, कोई 2000 लेगा, कोई 500 लेगा, कोई 5000 लेगा, कोई 10,000 लेगा, पैसा फेंको सर्टिफिकेट मिलता है. सर्टिफिकेट का इशू नहीं है, इशू है नॉलेज का. नॉलेज रहेगा तो सामने वाला हायर करेगा. सर्टिफिकेट का क्या करेगा, वो तो पैसे से मिल जाएगा. Right, fair enough. So we'll just ask one last question before the rapid fire round. Like this is about you. Like, so have you ever felt like handling so much, mentoring students, ये तो ऐसा कभी burnout feel हुआ है, and like how do you handle that? देखो यार, इट्स ऑल अबाउट द पैशन यू फॉलो, राइट. तो आप जो अगर कोई चीज को पसंद करते हो और आप वो चीज करते हो तो आपको कभी बर्नआउट नहीं होता है. दैट इज सिंपल एनालॉजी. इसलिए मैं कहता हूँ फाइंड व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू. ठीक है, तो ये एनालॉजी आप चलोगे ना तो आप कभी थकोगे नहीं. देन यू विल नॉट फील स्ट्रेस, यू एंजॉय द जर्नी. बट अगर आप कोई चीज जबरदस्ती कर रहे हो तो फिर वो एक बर्नआउट हो जाएगा, नहीं यार बस. तो
बर्नआउट नहीं आता, बट हाँ कभी कभी यू फील फटीग, कभी कभी यू फील लाइक यार आई वांट टू टेक अ ब्रेक, देन यू टेक अ ब्रेक, राइट? जैसे कि लास्ट फ्यू डेज आई बीन टू लद्दाख, आई वेंट फॉर अ बाइक राइड फॉर 7 odd days, right? I kept my phone off. So you enjoy the journey, you enjoy the nature, you enjoy the process. You have to think what you love, and parallelly you divide your time. ऐसा नहीं कि सिर्फ काम ही कर रहे हैं. So that is how you plan your journey. I think we took a lot of takeaways from you before the session, actually. So we'll just end with a quick rapid fire. So, big for a startup. I think we have already asked that, Yeah. so no more. So, one habit every CA student should develop immediately. One habit, To read, I think. reading. Yeah. Any book suggestion? No, in terms of reading, in terms of what is going in the market, what is Okay, that something which is there, है ना? Newspaper, किताबें तो वैसे ही ज्यादा है headlines. हमारे पास, जो है वही खत्म हो जाए. Right. So, most overrated productivity advice. Overrated productivity. प्रोडक्टिविटी एडवाइस मतलब कि ये करो तो मतलब दिस इज प्रोडक्टिविटी, मतलब कि बहुत ज्यादा ही लोग बोल रहे हैं कि मतलब 12 घंटे 24 घंटे काम कर लो, हाँ तो तो मतलब वैसा टाइप का I think कुछ. people don't focus on following a passion instead of just saying कि आप करते जाओ, है ना, फल मिलेगा, बट करो वो जो पसंद है ना. That is what I feel is overrated. Last one thing students should stop doing instantly. I would say scrolling Instagram. Okay, so this was a nice session. Any last message you would like to give to all the CA students, especially in Siliguri? No, I think your team has been doing great, right? The entire branch has been working hard. You should be part of the events, conferences, whenever they happen. करो आप बढ़िया से. लाइफ का रूल बड़ा ही सिंपल है भैया. तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा. Better you do it before someone else do it. Number two, opportunities will not wait for anyone. They'll come, they'll go. You have to decide when you have to pivot. Don't think much. Reach out to the people. Become shameless. जॉब तुम्हें चाहिए, करियर तुम्हारा है, तुम्हें को जाना पड़ेगा. कोई सामने चल के नहीं आएगा. ये चीज आप ध्यान में रखें. And do great. Right? People are there to help and there to help you out. So do the things nicely. You're able to accomplish it. Thank you so much. It was a lovely one. Great. Thank you. Thank for you. inviting me. Thank you.